ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی کے سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے بعد بلدیاتی ترمیمی بل نافذ العمل ہو گیا۔ ترمیمی بلدیاتی قانون کے تحت کراچی میں ڈسٹرکٹ کونسلز تحلیل اور شہر قائد میں ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز ختم ہو گئی ہیں۔ اب بل کے تحت نئے ٹاؤنز بنائے جائیں گے۔ سندھ اسمبلی کے سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے بعد بلدیاتی ترمیمی بل نافذ العمل ہو گیا۔ اس حوالے سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ترمیمی بلدیاتی قانون کے تحت کراچی میں ڈسٹرکٹ کونسلز تحلیل ہو گئی ہے اور شہر قائد میں ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اب بل کے تحت نئے ٹاؤنز بنائے جائیں گے۔ منظور کردہ بل کے تحت عباسی شہید اسپتال اور قومی ادارہ برائے امراض قلب NICVD KMC کے بجائے حکومت سندھ کو منتقل ہو جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے تحت DMCs اور ڈسٹرکٹ کونسلز کے زیر اہتمام تمام اسکولز، اسپتالوں، مراکز صحت کا انتظام بھی صوبائی حکومت ہی سنبھالے گی۔ بلدیاتی ترمیم بل کے تحت اب میئر اور چیئرمین کا انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا۔ میئر اور چیئرمین کا الیکشن لڑنے کے لیے کونسل ممبر ہونا لازمی ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے تحت بلدیاتی کونسلز میں خواجہ سراہوں اور خصوصی افراد کے لیے 1% نشستیں مختص ہوں گی۔ ہر کونسل میں خواجہ سراہوں اور خصوصی افراد کی کم از کم 1 نشست ہوگی۔ پراپرٹی ٹیکس ٹاؤن میونسپل کونسل جمع کریں گے اور یونین کمیٹی کا وائس چیئرمین ٹاؤن میونسپل کونسلز کا رکن ہوگا۔ سندھ اسمبلی کے سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل کے تحت 10 دن گزر جانے کے بعد اس بل کو نافذ العمل کر دیا گیا ہے، جبکہ واضح رہے کہ بلدیاتی ترمیمی بل 26 نومبر کو منظور کیے جانے کے بعد حتمی منظوری کے لیے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھیجا گیا تھا۔ گورنر سندھ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بل پر اعتراضات دور کرنے کے لیے 11 دسمبر کو واپس یہ بل بھیج دیا تھا۔ سندھ اسمبلی نے بلدیاتی ترمیمی بل کو 11 دسمبر کو مزید ترامیم کے ساتھ منظور کیا۔ اس طرح سندھ اسمبلی سے دوبارہ منظور شدہ بل اسمبلی سے منظور کرایا گیا۔ اور اب کچھ تذکرہ کریں گے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کا۔ آپ کو بتائیں کہ اب تو کراچی مہم کے فیصلہ کن مرحلے کا آغاز۔ جماعت اسلامی کا 31 دسمبر کو سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ MQM اور پیپلز پارٹی نے مل کر کراچی کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 سال سے زائد عرصے میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی جھوٹے وعدے اور پیکیجز کے اعلانات کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب سب اختیارات سندھ حکومت کے پاس ہوں گے تو صرف نام کے میئر کا کیا فائدہ ہوگا۔ کراچی بچاؤ تحریک سندھ حکومت کو متنازع بلدیاتی ترمیمی بل واپس لینے پر مجبور کر دے گی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا کہ MQM اور پیپلز پارٹی نے مل کر کراچی کو تباہ و برباد کیا۔ 3 سال سے زائد عرصے میں PTI نے بھی جھوٹے وعدے اور پیکیجز کے اعلانات کے سوا کچھ نہیں کیا۔ جماعت اسلامی کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور PTI اور MQM نے مسلسل تعصبات اور مفادات کی سیاست کی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہر بار حکومت میں رہنے کے باوجود MQM نے کراچی کا مسئلہ حل نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ اور نواب شاہ کا مسئلہ حل نہیں کیا، ارباب رحیم صاحب بھی ایک وزیر اعلیٰ تھے، اس نے تر کا مسئلہ بھی حل نہیں کیا، اور آج بھی اندرونی سندھ اور شہری علاقے اسی طرح مشکلات سے دوچار ہے۔ گوٹوں میں، شہروں میں، جھونپڑیوں میں ہر جگہ غربت ناچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا PTI کے اندر سے سلطانی گواہی آ رہی ہے کہ حکومت نے ملک کا سب کچھ IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ملازمت میں توسیع دینے کے بجائے فارغ کیا جائے۔ اس حکومت نے قرضے لے کر آئندہ نسلوں کو بھی ورلڈ بینک اور IMF کا مقروض بنایا اور غلام بنایا۔ وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ ڈالر کی کمی کی وجہ سے ہم نے IMF سے قرضہ لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈالرز کی کمی کی وجہ سے ہمارے ملک کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی نالائقی اور نااہلی کی وجہ سے ہماری پوری قوم قرضوں کے زنجیروں میں جکڑی گئی۔
बदवानी में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि 2013 में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बल्दियाती कराची 19 महकमे सिंध हुकूमत के हवाले किए। मजीद 14 महकमे सिंध हुकूमत ने तरमीमी बिल में ले लिए। जब सब इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास होंगे तो सिर्फ नाम के मेयर का क्या फायदा होगा। इस मौके पर मरकजी नायब अमीर डॉक्टर फरीद अहमद पराचा, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद असगर, अमीर कराची हाफिज नईम उर रहमान, नायब अमीर कराची डॉक्टर असामा रजी और दीगर मौजूद थे। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। खबर शामिल करेंगे कराची के जिला कोरंगी से। कराची के जिला कोरंगी में घर घर से कचरा उठाने और सफाई सुथराई के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना के हमरा कोरंगी जोन से फ्रंट एंड कलेक्शन के काम का इफ्तिताह कर दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक हम खिदमत कर रहे हैं। जिन अजला में इस वक्त SSWMB काम कर रहा है वहां सफाई का मयार कदरे बेहतर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब पूरे कराची में सफाई का इंतजाम सिंध सॉलिड वेस्ट के पास आ जाएगा तो लोगों की शिकायत भी दूर हो जाएंगी। दीगर इंडस्ट्रियल जोन्स के मुंतजमीन से भी सफाई सुथराई के लिए ताउन के ऊपर बातचीत की जा रही है। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD जुबैर अहमद चन्ना के हमरा जिला कोरंगी में घर घर से कचरा उठाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि जब ये इक़्तिदार में नहीं थे तो कहते थे कि मुल्क महंगा तरीन है, आज सस्ता हो गया। गैस बहरान वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से है, आज भी इनकी वजह से बिजली का यूनिट महंगा है। जी फवाद चौधरी साहब वैसे तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो सिवाय झूठ के कोई बात नहीं कहते और ऐसा सफेद झूठ और ऐसी खूबसूरती से बोलते हैं जिस तरह खुद गपलू से हैं, तो वो बड़ा आसानी से वो बात कर देते। मुझे एक बात बता दें, उनकी रोज की डेली जो उनकी स्टेटमेंट आती है जिसमें किसी एक में उनकी सदाकत हो, वो खुद भी कहते हैं, उनके कप्तान साहब भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। ये वही मुल्क था 2018 में जब ये इक़्तिदार में नहीं आए थे, जब चीनी, आटा, ऑयल, डॉलर, दीगर चीजें बहुत सस्ती थी, बिजली 8 रुपए पर यूनिट थी, अब खैर से 26-27 रुपए पर यूनिट है। उस वक्त ये महंगा तरीन मुल्क था। उनका मजीद कहना था कि फवाद चौधरी गलत बयानी के सिवा कोई बात नहीं करते। वो हमेशा मुराद अली शाह पर इल्जाम लगाते हैं, ख्वाजा इजहारुल हसन पर भी वफाकी हुकूमत का असर है। कि ये जो हमारे इत्तेहादी हैं इस वफाकी हुकूमत के, जिन्होंने अभी ये शगुफा छोड़ा कि मुराद अली शाह साहब जिम्मेदार हैं पूरे पाकिस्तान की गैस के, इनसे पूछे इन्होंने कोई बात की वफाकी हुकूमत से? कभी कोई बात की इन्होंने कि भाई ये इतनी गैस महंगी हो गई, इतना पेट्रोल महंगा हो गया, इतना आटा महंगा हो गया, इतनी चीनी महंगी होगी? उस पर कोई बात नहीं करेंगे। वहाँ पे बस एक डेढ़ वजारत लेके वो नफीस उजरा बन गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि माजी में जो लोग थे वो सिर्फ बातें करते थे, हम आज इसको मुकम्मल कर रहे हैं। बहुत जल्द जिला वस्ती में भी इस तरह काम करेंगे, जबकि कचरा उठाने के निजाम को फाल बनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के 7 में से 6 अजला हमने सॉलिड वेस्ट के थ्रू ऑपरेशनलाइज कर दिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को भी आपकी मदद के साथ हम ऑपरेशनलाइज करके सारे कराची को की सफाई की सिचुएशन को इंशाल्लाह मौसर बना पाएंगे। मैं यहाँ पर मीडिया के तवज्जुह से इस बात को जोर देना चाहूँगा कि सफाई एक एसेट है, कचरा जो है एक एसेट है और सिंध सॉलिड वेस्ट के ज़रिए, एनर्जी डिपार्टमेंट के ज़रिए जहां अब कचरे के निज़ाम को फाल बनाया जा रहा है, कचरे की कलेक्शन को फाल बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ अब उसको पावर के तौर पर, पावर की रॉ मटेरियल सोर्स के तौर पर बिजली बनाने के लिए या सीमेंट फैक्ट्री का रॉ मटेरियल बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। इस मौके पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD जुबैर अहमद चन्ना का कहना था कि घर घर से कचरा उठाने के काम का आगाज कोरंगी जोन से किया जा रहा है और बिलतरतीब कोरंगी के दीगर जोन में भी जल्द आगाज किया जाएगा। इस MOU के तहत अब जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इनके मुख्तलिफ एजेंसीज ने या कंपनीज ने या इंडस्ट्रीज ने किए हुए थे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी,
وہ ineffective ہو جائیں گے سر. جو ایکسکلوسیوٹی ہے وہ صفائی کی وہ اس کمپنی کے پاس ہوگی سر. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ایگریمنٹ ان کے سائن کیا ہے کہ جو ڈور ٹو ڈور کلیکشن جو پرائمریلی ریزیڈینشیل ایریاز کے لیے تھا اب ہم فرسٹ آف اس کائنڈ کراچی میں انڈسٹریل زون سے شروع کریں گے. فرنٹ اینڈ کلیکشن کی افتتاحی تقریب میں شہر کی اہم شخصیات نے شرکت کی. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز میں چیسٹ پین یونٹ کا قیام عمل میں آ گیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ IHD کو مثالی طبی ادارہ بنائیں گے. کوئی بھی سیاسی جماعت اور حکومت اگر اچھا کام کرتی ہے تو انہیں ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے. گھوس ملازمین اتنے ہیں کہ ان پر کام کیا جائے گا. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے NICVD کے تحت کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز میں 22ویں چیسٹ پین یونٹ کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے وارڈ کا دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ بھی لیا. بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت بلدیاتی ترمیمی ایکٹ میں جو ترمیم لائی ہے اس کے تحت اب KMC اسپتال اور ایجوکیشن سندھ حکومت کی طرف کر دیا گیا ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت اور حکومت اگر اچھا کام کرتی ہے تو انہیں ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے. گھوس ملازمین اتنے ہیں کہ ان پر کام کیا جائے گا. 2013 کے قانون کے تحت سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس کے تحت یہ جو ہسپتال ہے یہ KMC کی ملکیت ہے. کیونکہ اس قانون کے اندر ہیلتھ کا شعبہ جو ہے وہ KMC کے پاس ہے. سندھ حکومت نے جو ابھی 2021 میں قانونی ترمیم لے کے آئی ہے لوکل گورنمنٹ کے قانون کے اندر, اس کے اندر ہیلتھ اور ایجوکیشن اب KMC DMC یا لوکل گورنمنٹس کے پاس نہیں ہے. واٹر بورڈ اور سالڈ ویسٹ, لوکل ٹیکس, ان تمام چیزوں کو اس طرف منتقل کر دیا گیا تاکہ میونسپل فنکشنز میونسپل ادارے کریں اور جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا کام ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ادارے کریں. تو اس قانون کے تحت جو کہ آج اس کے ٹائم پیریڈ مکمل ہو گیا, انشاءاللہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں وہ گزٹ نوٹیفیکیشن اس کا ہو جائے گا, وہ قانون نافذ العمل ہوگا صوبہ سندھ کے اندر. تو اس قانون کے تحت جو ہسپتال کا شعبہ ہے وہ واپس سندھ حکومت کے پاس چلے جائے گا. میں ملازمین کے حوالے سے یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ جو ملازمین ہیں وہ ہاں KMC کے ملازم تو ہیں لیکن وہ پبلک سرونٹ ہے. ان کا کام ہے پبلک کی خدمت کرنا, جس خدمت کے عوض ان کو تنخواہ KMC دیتی ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی کا کہنا تھا کہ KIHD کو مثالی طبی ادارہ بنائیں گے. کراچی کے دیگر علاقوں میں بھی چیسٹ پین یونٹ بنائے جائیں گے. چیسٹ پین یونٹ 24 گھنٹے کام کرے گا اور بلا امتیاز اور تفریق سہولیات فراہم کی جائیں گی. اور اب کچھ بات کریں گے گرین لائن بس منصوبے کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ شہریوں کے لیے گرین لائن بس منصوبے کی سروس کا آغاز آج سے ہوگا. بس مزار قائد کے سامنے بنائے گئے انڈر پاس سے ہوتی ہوئی نمائش چورنگی پر پہنچے گی. گرین لائن بس کی اگلی منزل لزبیلا سے گرو مندر ہوگی. بس ناگن چورنگی سے نارتھ ناظم آباد سے گل بہار سینیٹری مارکیٹ تک پہنچے گی. سجانی ٹاؤن سے نکلنے والی بس 4K چورنگی سے ہوتی ہوئی UP موڑ پہنچے گی, جبکہ سرجانی ٹاؤن سے نمائش چورنگی تک کا روڈ 22 کلومیٹر پر طویل ہے. گرین لائن بس کا پہلا مرحلہ سرجانی ٹاؤن سے نمائش چورنگی تک کا روٹ ہے. گرین لائن بس میں نگرانی کے لیے CCTV کیمرے بھی نصب ہیں. دوران سفر مسافر وائی فائی موبائل چارجنگ پورٹ بھی استعمال کر سکیں گے. گرین لائن میں رش کے اوقات میں 180 افراد سفر کر سکتے ہیں. گرین لائن بس میں ایک وقت میں 44 افراد سفر کر سکتے ہیں. گرین لائن بس کی لمبائی 18 میٹر ہے. گرین لائن بس منصوبے کے لیے چین سے منگوائی گئی بسوں کی تعداد 80 ہے. گرین لائن بس ابتدائی طور پر محدود آپریشن کے ساتھ صبح 8 بجے سے چلائی جائے گی. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. میٹرو ون نیوز, ہر پل کی خبر.
वेलकम बैक। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची की तामीर और तरक्की में हमारे मसीही भाइयों का बहुत अहम किरदार है। कराची में अक़लियती बिरादरी को मुकम्मल हुकूक हासिल है। कराची के सब लोग बाहमी मोहब्बत, अखुवत, मसावत और यकजहती को फ़रोग़ दें ताकि ये शहर अमन और अमान का गहवारा बन जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सेंट पैट्रिक चर्च में कार्डिनल जोसेफ कोट्स और फादर स्वाले से मुलाकात की और क्रिसमस के हवाले से केक और फूल पेश किए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और कार्डिनल जोसेफ कोट्स, लाल चंद इकरानी और दीगर ने मिलकर क्रिसमस का केक भी काटा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर में अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाता है। क्रिसमस की तक़रीबात के हवाले से हुकूमत सिंध ने तमाम तर हिफाजती इक़दाम किए हैं। हमें अक़लियती बिरादरी के त्यौहारों में शामिल होकर उन्हें अपना होने का एहसास दिलाना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि कराची की तामीर और तरक्की में हमारे मसीही भाइयों का बहुत अहम किरदार है। कराची में अक़लियती बिरादरी को मुकम्मल हुकूक हासिल है और हम इनकी खुशियों में शामिल हैं। कराची के सब लोग बाहमी मोहब्बत, अखुवत, मसावत और यकजहती को फ़रोग़ दें ताकि ये शहर अमन व अमान का गहवारा बन जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची साजिदा काजी ने कहा है कि मसीही मुलाजमीन हमारे इदारे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इन्हीं की दिन रात की मेहनत की बदौलत इलाके साफ सुथरे और चमकते नजर आते हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद आराई, डायरेक्टर सैनिटेशन सलीम रजा, सदर PPB जिला कोरंगी जावेद शेख मसीही नुमाइंदों के हमरा ह्यूमैनिटरी वर्कर्स में क्रिसमस के हवाले से तोहफ़े तकसीम करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी साजिदा काजी का कहना था कि इनकी खुशियों में शरीक होना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। जो लोग हमारे लिए आवाम के लिए गंदगी के ढेर को साफ करते हैं वो बेहतरीन होते हैं जो दूसरों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए अपनी सेहत को मुश्किल में डालते हैं। उनका मजीद कहना था कि मसीही बिरादरी की खुशियों में भरपूर तरीके से उनके साथ शामिल हैं। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद आराई ने कहा कि मसीही बिरादरी की ईद पर वो उनको मुबारकबाद देते हैं। DMC साउथ इंतजामिया की जानिब से मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस के त्यौहार के से कबल ही तनख्वाहें जारी कर दी गईं। एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद कहती हैं कि आप अपनी इबादत में दुनिया और खुसूसन पाकिस्तान में अमन सलामती, भाईचारे, मोहब्बत और अखुवत के क़याम के लिए खुसूसी दुआएं करें। एडमिनिस्ट्रेटर साउथ डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद ने क्रिसमस और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर पैगाम देते हुए कहा कि बल्दिया जनूबी इंतजामिया बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश और क्रिसमस के मौके पर अवाम को तमाम तर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी रिवायती जोशो जज्बे के साथ जारी रखेगी। उन्होंने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक एहसास शख्सियत के मालिक थे। ऐसे कदावर अजीम कायद रहती दुनिया तक हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा जावेद रहेंगे। वो बेशक हमारे लिए अतिया खुदाबंदी की हैसियत रखते हैं। 25 दिसंबर का दिन हमें कायद आज़म की पाकिस्तान के लिए की गई अनथक मेहनत और मुसलसल जिद्दोजहद की याद दिलाता है। आज हम सब मिलकर अहद करें कि बाबा कौम के रहनुमा उसूलों पर चलते हुए वतन अजीज की तामीर और तरक्की के लिए अपने फराइज दयानत और ईमानदारी से अंजाम देंगे। मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम, अमन और भाईचारे के फरोग के लिए आपस के तमाम इख्तलाफात को खत्म करके पाकिस्तान को दौरे जदीद की तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ में खड़ा करेंगे। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर वाटर बोर्ड ने कराची के इलाके मलीर मेमन गोट की हुदूद में 2 गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिए। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने सैयद नासिर हुसैन शाह और MD वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान की हिदायत पर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन करके डिस्ट्रिक्ट मलीर मेमन गोट के हुदूद में 2 गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिए। ऑपरेशन एंटी थेफ्ट सेल इंचार्ज वाटर बोर्ड अब्दुल वाहिद शेख की सरबराही में किया गया। इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल का कहना था कि मुल्जिमान गैर कानूनी हाइड्रेंट के जरिए डिस्ट्रिक्ट मलीर का पानी चोरी करके टैंकरों के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करते थे। उनका कहना था कि कार्रवाई के दौरान सैकड़ों फुट पाइप कब्जे में ले लिए गए हैं।
वजीर बल्दियात सिंध और चेयरमैन कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी किया जाए और शहरियों के हिस्से का पानी चोरी करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए और ऑपरेशन बिला किसी इम्तियाज के किया जाए। एमडी वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान का कहना था कि मुल्जिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, उन्हें कैफिर किरदार तक जरूर पहुंचाया जाएगा और उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई भी की जाएगी। और अब अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके महमूदाबाद में शहर कायद में एक और नाले में गैस भरने से धमाके का वाकया। महमूदाबाद नाले में धमाके से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त बिलाल, दिलावर और जॉन के नामों से हुई। धमाके से मोटरसाइकिल की दुकान तबाह जबकि करीबी दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर सुई गैस के लीकेज से धमाका हुआ। वाकये की मजीद तहकीकात अभी जारी है। कराची के इलाके महमूदाबाद गेट के करीब नाले में गैस भरने से धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जो धमाके का सबब बताया गया है अभी, वो नाले के अंदर जो गैसेस जमा होती हैं और जब उनको जो उनके अखराज की अगर कोई जगह ना मिले तो फिर ये ब्लास्ट की सूरत में जो है वो सामने आते हैं और लोग जो इंजर्ड हुए हैं वो ब्लास्ट की वजह से जो मलबा निकला है जो आपके सामने है उसकी वजह से ज़ख्मी हुए हैं। 4 अफराद ज़ख्मी हुए थे, 3 को डिस्चार्ज कर दिया गया, एक अभी हॉस्पिटल में है, उसका इलाज जारी है और अल्लाह का शुक्र है कि वो भी ख़तरे से बाहर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तो बहुत बड़ा वाक़या क्यामाड़ी में हुआ था शेरशाह के मकाम पे, और दूसरा ये वाक़या हुआ है इसमें मैंने अभी डीएमसी ईस्ट को तो कहा है कि ईस्ट के अंदर जितने नाले हैं जिनके ऊपर कोई कवर हुआ है उनको रीओपन करें और गैसेस के अखराज की कोई जगह ज़रूर छोड़ें। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर सुई गैस के लीकेज सीवरेज में गैस के बाइस धमाका हुआ। जख्मियों की शनाख्त बिलाल, दिलावर और जॉन के नामों से हुई है, जबकि वाक़े की मजीद तहकीक जारी है। कायदाबाद मुर्गी खाना पुल पर मुसल्लह मुल्जिमान ने कार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल करते हुए एक शख्स दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक जांबाग शख्स की शनाख्त खुदा दोस्त के नाम से की गई, जबकि जख्मी की शनाख्त उमरजादा के नाम से हुई। रेंजर्स और पुलिस ने खुफिया इत्तला पर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में मनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मनशियात फरोशी के जुर्म में मुलव्वस मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मनशियात फरोश कराची यूनिवर्सिटी और मुल्हिका इलाकों में मनशियात फरोख्त करने में मुलव्वस हैं। मुल्जिमान के कब्जे से मनशियात भी बरामद कर ली गई। आरिफ बंगश, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख और म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान का महमूदाबाद नाले का दौरा। धमाके के बाद की सूरत हाल का जायजा लेते हुए कहा कि महमूदाबाद में होने वाला धमाका अफसोसनाक है, जो बल्दिया शर्की की गफलत नहीं है। नाले की दुरुस्तगी के हवाले से बल्दिया शर्की अपना किरदार अदा कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों के लिहाज से बल्दियाती खिदमात को यकीनी बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि नालों की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए बल्दिया शर्की अपना हर मुमकिन किरदार अदा कर रही है। दायरे इख्तियार के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। महमूदाबाद में होने वाला धमाका अफसोसनाक है। म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल वर्क सलमान मेमन, डायरेक्टर तौकीर अब्बास और दीगर के हमरा महमूदाबाद के नजदीक होने वाले धमाके के बाद मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। नालों को सिर्फ नाले के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। नाले साफ भी किए गए हैं और इनकी तामीर में तकनीकी लिहाज से भी खास ख्याल रखा गया है और आइंदा भी इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि उन्होंने इस मौके पर मौजूद अफसरान को अहकामात दिए कि फौरी तौर पर नाले को दुरुस्त किया जाए और इस हवाले से रिपोर्ट भी पेश की जाए, जबकि जो नाले बल्दिया शर्की की जिम्मेदारी हैं उनका बारीक बीनी से जायजा लिया जाए और जहां भी बेहतरी लाने की जरूरत है वहां जरूरत के तहत काम किए जाएं ताकि इस किस्म के वाकयात रोनुमा न हो सके। लिहाजा अफसरान किसी किस्म की कोताही का कतई मुजाहरा ना करें, क्योंकि इस हवाले से गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हवाले से जिस इदारे या महकमे की जरूरत हो उससे राब्ता रखा जाए ताकि उमूर की अंजामदही में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े।
बल्दिया वस्ती इंतजामिया ने आवाम को तफरीही सहूलियात पहुँचाने के लिए गुले दाऊदी नुमाइश के इनेकाद का फैसला कर लिया। गुलबर्ग के तालीमी बाग में साले 9 के पहले अशरे में गुले दाऊदी नुमाइश का इनेकाद होगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी कहते हैं कि फूलों की नुमाइश आवाम के लिए तोहफा है। शहरी शिरकत करके गुले दाऊदी की नुमाइश को कामयाब बनाएं। दिल फरेब और दीदा ज़ेब फूलों की शैदाई हो जाएं तैयार। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी की हिदायत पर बल्दिया वस्ती में फूलों की नुमाइश की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। गुले दाऊदी नुमाइश का इनेकाद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 के तालीमी बाग में साले 9 के पहले अशरे में होगा। एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने गुले दाऊदी नुमाइश को बल्दिया वस्ती इंतजामिया की जानिब से आवाम के लिए तोहफा करार दिया। उन्होंने आवाम बिलखुसूस जिला वस्ती के मकीनों से अपील की है कि शहरी गुले दाऊदी नुमाइश में शिरकत करके इसे कामयाब बनाएं। इस सिलसिले में बल्दिया वस्ती महकमा बागात के डायरेक्टर नदीम हनीफ का कहना था कि कराची में गुले दाऊदी नुमाइश का आगाज बल्दिया वस्ती से शुरू हुआ, जहां नायाब और मुनफरिद अक़साम के फूल पौधे हमेशा से शहरियों की तवज्जो का मरकज रहे हैं। बल्दिया वस्ती इंतजामिया का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी शहरियों को 100 से जायद मुख्तलिफ अक़साम के दीदा ज़ेब फूल और पौधे नुमाइश में देखने को मिलेंगे, जो कि बल्दिया वस्ती की अपनी नर्सरियों में तैयार किए गए हैं। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बल्दिया कोरंगी में तजावुजात के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम जारी है। महकमा इंसदाद तजावुजात का लांडी में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। गैर कानूनी दुकानें मिसमार, सड़कों पर रखा गया सामान सब। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी और म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद आराई का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कोई भी कितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। शहर कायद को असल हालत में लाने का मिशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला इंतजामिया ने अपनी कमर कस ली है। दीगर अजला की तरह लांडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान फुटपाथ वागुजार कराकर आवाम को पैदल चलने की सहूलियात फराहम की गई। रोड और फुटपाथ पर रखे हुए केबिन, होटल का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पथारे, पंक्चर बनाने का सामान, गन्ने की मशीन और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गई। कार्रवाई डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अब्दुल समद मालिक, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी और म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद आराई की निगरानी में की गई। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी और म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद आराई का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कोई कितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। हमने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में रोजाना की बुनियाद पर हमारे ये ऑपरेशन हो रहे हैं। तो जैसा कि आज आपने देखा कि मैं सुबह होकर आया था, अभी आप लोग भी होकर आए, लांडी बाबर मार्केट पे जितने ठेले पधारे थे वो हमने पूरे साफ़ किए सारे के सारे, और मेन रोड्स के ऊपर जितने शेड थे, जो भी चीज़ें रुकावट के आ रही थी ट्रैफिक के और आवाम के बीच में खलल पैदा कर रही थी, वो सारा रिमूव हुआ है। आज सुबह से ये ऑपरेशन चल रहा था, जो कि अभी ख़त्म हुआ है। हमारी टीम भी एक्टिव है, इंशाल्लाह वो फिर जाएगी, फिर हटाएगी इन लोगों को जब तक ये लोग बाज नहीं जाते और जब तक ये ख़त्म नहीं कर देते। हम अपना काम करेंगे, ये लोग भले अपना काम करें, आए जाएं, जो भी करें, लेकिन हम अपना काम करेंगे और हम इन्हें हटाते रहेंगे और हटा के इंशाल्लाह दम लेंगे हम लोग। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अब्दुल समद मालिक ने कहा कि हमारी कोशिश है कि तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई को मजीद तेज किया जाए। यहाँ की कंप्लेंट्स हैं और ये भी रेगुलर बेसिस पे डबल रोड है जो पूरा ऑक्यूपाइड है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी को तंग ना किया जाए और जितनी हो सके हम इस रोड को क्लियर करें, ताकि ट्रैफिक और आम आवाम जो है वो चलती रहे। जो ऑपरेशंस हैं इस वजह से ये बाबर मार्केट में चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस तरह के जो भी मार्केट्स हैं उसको सबसे ज़्यादा ओपन और खुला किया जाए। इलाका मकीनों ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई को खुश आइन करार देते हुए कहा कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि जहां ऑपरेशन किया जा रहा है वहां दोबारा से तजावुजात कायम ना हो। कराची के इलाके लियाकताबाद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के करीब सीवरेज के बोसीदा निजाम ने शहरियों को सख्त अजियत में मुब्तला कर दिया। बदबूज़दा माहौल, कीचड़ और गंदा पानी इलाका मकीनों में बीमारियां पैदा करने का सबब बन गया।
हुकूमतें बदलती रही, निजाम बदलते रहे, लेकिन कराची की हालत बद से बदतर ही रही। कराची के इलाके लियाकताबाद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में बोसीदा सीवरेज निजाम बना आवाम के लिए वबाले जान। सीवरेज का पानी खड़ा होने से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन मौजूदा सूरत हाल पर सिंध हुकूमत से नाला दिखाई दिए कहा, सिंध हुकूमत कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। सारे इख्तियारात होने के बावजूद कराची के मसाइल हल न होना समझ से बालातर है। यहाँ 1 साल से पानी आ रहा है, 1 साल से गाड़ियाँ गलती हो रही हैं, वहाँ रिक्शे वाले बेचारा अभी गलती हो रहा था, गटर खड्डे खुले हुए में पानी से पूरा रोड खराब हो रहा है। ये लाइन साफ पानी की लाइन वहाँ से टूटी हुई है, अस्पताल के गेट से आगे से। 1 साल हो गया, इसको कुछ सही करने वाला है ही नहीं। सिंध हुकूमत ये कहती है, मुराद अली या शाह ये कहता है कि मैं मुल्क को। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।